Good evening, everybody. Okay, बच्चे in the previous class we were doing respiration in living organisms. वो portion जो था हमने complete कर लिया था. We had talked about different, you can say, cycles in respiratory system. That is aerobic and anaerobic. Then we talked about human respiratory system and its various parts, and then its exchange of gases. Okay, ये हमने अपना last topic जो था बच्चे वो complete किया था. So, बच्चे we'll be today moving ahead. We'll be starting up with transportation in living organisms. Living organisms के अंदर transportation जो है वो आज हम start करेंगे. So, बच्चे we'll be specifically dealing with circulatory system in human beings today. Human beings के अंदर circulatory system जो है, we'll be talking about arteries, we'll be talking about veins, we'll be talking about blood, a bit about structure of heart, how it circulates blood. Okay. And then at the end of the session, we'll be talking about blood pressure. What is its significance? ये हम बच्चे अपने आज के सेशन के एंड में डिस्कशन करेंगे. तो मेन जो हमारा आज फोकस रहेगा, that will be transportation in human beings. All right. So बच्चे, first of all, before we start up with transportation, we need to understand why transportation is important. Transportation important क्यों है? बच्चे, if we look at multicellular organisms, जिनमें बहुत सारे cells हैं, tissues हैं, organ systems हैं, different parts require different materials. Okay, and it is not necessary कि जिस material की requirement है वो उसके आसपास ही हो. It might be कि उसे organism के अंदर बहुत दूर से travel करके आना पड़ता है. तो बच्चे, this requirement is fulfilled by transportation. जैसे बच्चे, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, वी ईट फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स. न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्सॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर. फिर बच्चे, वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय विलाई इनटू द ब्लड एंड देन ब्लड विल ट्रांसपोर्ट देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सिमिलरली व्हेन वी ब्रीथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने सीखा था, गैसेस आर एक्सचेंज विद इन द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं. ब्लड अगेन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कलेक्ट्स CO2 एंड ब्रिंग्स इट बैक टू लंग्स. उसके बाद बच्चे, हमारे डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज जो हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. ऑलराइट, बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. अब वो टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होंगे? दे विल बी कैरिड टुवर्ड्स किडनीज. वो किडनी की साइड मूव करेंगे. ऑलराइट, and in the kidneys there will be filtering of blood. किडनी के अंदर क्या होगा? ब्लड की फिल्टरिंग होगी, which will help to remove the nitrogenous waste from the blood. all right, तो बच्चे, ये कुछ आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, फंक्शंस हैं. all right, so बच्चे, we'll be dealing with different types of components which are present in our circulatory system or our transportation system. So first of all, we'll be picking up blood vessels. Transportation system जो है, it is helping in transport of various materials such as nutrients, gases, waste materials, etc. And the circulatory system or the transportation system in human beings, it is made up of blood vessels. तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे blood vessels की. They are very important components. They are very important components of our circulatory system. अब बच्चे, जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स यू कैन से दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और डक्ट्स which help to transport blood throughout the body. So blood vessels, they are tube like structures. You can say tube or pipe like structures. They're tube or pipe like structures. Okay, which help to transport, या आप कह सकते हो which helps to carry blood,
to various parts of the body. All right. So blood vessels, they are closed tube-like or pipe-like structures which are helping to carry blood to various parts of the body. Okay. अब बच्चे जब आप ब्लड वेसल्स की बात करते हो, यू विल बी डिवाइडिंग देम इनटू वेरियस कैटेगरीज. आप इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. These are the three different categories of blood vessels which are present in our body. So बच्चे जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी बॉडी के अंदर जो है, that is arteries. Okay, arteries. बच्चे, can you see the screen, everybody? Can you see the screen? Okay. बच्चे, if you are facing problem in seeing the screen, एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो. Arteries. अब बच्चे, when you talk about arteries, what is their role? They are blood vessels which carry blood away from the heart. Okay. Arteries, they carry blood away from the heart to all body parts. बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाता है which blood vessels carry blood from heart to body parts, तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? Arteries. Arteries carry blood away from the heart to all the body parts. Okay. Another very important thing that you need to remember, because they are carrying blood away from the heart, बच्चे वो ब्लड को कहां लेके जा रहे हैं? हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास. तो बच्चे, they will carry oxygenated blood. They carry oxygenated blood. ये आप लिख सकते हो, they always carry oxygenated blood. They always carry oxygenated blood except, बच्चे इनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, सिर्फ किसको छोड़ के? एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी. एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी. ओके. सिर्फ एक ही आर्टरी है बच्चे पूरी बॉडी में जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो कौन सी आर्टरी है? पल्मनरी आर्टरी. एंड बच्चे, ये आर्टरी ब्लड किधर लेके जाती है? ये ब्लड आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर लेके जाती है? टुवर्ड्स लंग्स. ओके. सो एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी which carries deoxygenated blood towards lungs. This is something which is very important to understand. सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये आपको याद रखना है. सिर्फ एक ही आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके जाती है? टू लंग्स. Okay, this is the only artery in the human body which carries deoxygenated blood. Okay, बच्चे, how do we define oxygenated blood? Oxygenated blood का क्या मतलब है? जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है. What is oxygenated blood? Blood which contains more concentration of oxygen. Deoxygenated, जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है. तो बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से सप्लाई होता है? लंग से. जब ब्लड लंग्स में जाता है तो ऑक्सीजनेट होता है, उसमें ऑक्सीजनेट ऐड होती है, एंड दैट ब्लड कम्स बैक टू हार्ट एंड देन टू ऑल बॉडी पार्ट्स. अविनाश, इज दैट क्लियर? All right. So only artery which carries deoxygenated blood is artery.
अब what other features we can write in arteries? बच्चे they are very thick walled. They are thick walled. अच्छा, why do you think they are thick walled? इसके पीछे क्या रीजन होगा कि वो थिक वॉल्ड है? इनके अंदर ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो होता है कि लो प्रेशर में फ्लो होता है? हाई ब्लड प्रेशर. ओके, एब्सोल्युटली राइट. बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर ब्लड बहुत हाई प्रेशर में फ्लो होता है. सो दिस इज द रीजन दे आर थिक वॉल्ड. दे आर थिक वॉल्ड बिकॉज, क्या रीजन है इसके पीछे? दे आर थिक वॉल्ड बिकॉज they carry blood under high pressure. Because they carry blood under high pressure. Okay, they are thick walled because they carry blood under high pressure. बच्चे ये बहुत हाई प्रेशर के अंडर क्या करते हैं? ब्लड को कैरी करते हैं. दिस इज द रीजन दे आर थिक वॉल्ड. अगर बच्चे इनकी वॉल्स थिक नहीं होंगी तो क्या होगा? इनका जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से क्या होगा? आर्टरीज विल बर्स्ट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें याद रखना है. ऑल राइट. विल दे शो प्रेजेंस ऑफ वैल्व्स? क्या इनके अंदर वैल्व्स प्रेजेंट होंगे? बच्चे वैल्व्स क्या होते हैं? वैल्व्स आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प टू फ्लो ब्लड इन वन डायरेक्शन. अब बच्चे क्योंकि इनके अंदर ब्लड बहुत जोर से पुश होता है तो इनके अंदर वैल्व्स की जरूरत नहीं होती. देयर इज नथिंग व्हिच इज कीपिंग द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक. ब्लड अपने प्रेशर के साथ ही आगे फ्लो करेगा. सो इन देम वैल्व्स आर एब्सेंट. वैल्व्स आर एब्सेंट. वैल्व्स आर एब्सेंट. ठीक है. जब हम वेन्स को देखेंगे बच्चे तो वेन्स के अंदर आपको वैल्व्स दिखाई देंगी. ऑलराइट. तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट यू कैन से फीचर्स हैं आर्टरीज के. आगे चलते हैं. सेकेंड जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं बच्चे, दे आर वेन्स. सेकेंड कैटेगरी इज वेन्स. ओके. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट वेन्स, जब हम वेन्स की बात करते हैं बच्चे, वेन्स दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आर्टरीज. ओके. बच्चे व्हाट डू वी मीन बाय वैल्व्स? बच्चे valves are flap like structures which push the blood in one direction. प्रॉब्लम ये है कि आपके हार्ट के अंदर भी valves अच्छी तरह नहीं दिखाए हुए हैं. बच्चे valves जो होते हैं they are flap like structures. जैसे डोर होता है ना, डोर की तरह उनके अंदर flap like structures होते हैं which keep pushing the blood in one direction. अब बच्चे आर्टरीज के अंदर तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो उनके अंदर वैल्व्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ब्लड तो खुद ही प्रेशर के साथ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा. पर बच्चे जब हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो वेन्स को ब्लड को लिटरली पुश करना पड़ता है हार्ट की तरफ. तो उनके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड वैल्व्स. वैल्व्स ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में रखते हैं ताकि ब्लड वापस ना जा सके. ऑलराइट, इज दिस क्लियर? ऑलराइट. Devadatta, you are absolutely right. There are 4 valves: tricuspid, aortic, pulmonary and mitral valve. Okay, when we will discuss the structure of heart मैं तब आपको valves दिखाऊंगा. I think सिमरन ने शायद मुझे कोई इमेज भेजी है शायद valves दिखाने के लिए. I'll just check this. Okay. All right. Okay, I'll just show you what Simran has sent across. सिमरन ने एक्चुअली हार्ट का डायग्राम भेज दिया है तो इसके अंदर आपको वैल्व्स दिखाई देंगे. वैल्व्स आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच कीप पुशिंग द ब्लड इन वन डायरेक्शन. ओके सिमरन, थैंक यू सो मच. इट वुड बी ऑफ ग्रेट यूज. इसको जब हम हार्ट की एनाटॉमी करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे. ओके चलो, आई विल बी मूविंग बैक टू ब्लड वेसल्स नाउ. तो बच्चे आपको ये याद रखना है कि आर्टरीज के अंदर वैल्व्स नहीं है, वेन्स के अंदर आपको वैल्व्स मिलेंगी.
ओके, सो valves will help to keep pushing blood in one direction, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को पुश करने में हेल्प करते हैं. ऑलराइट, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, थैंक यू सिमरन फॉर हेल्पिंग मी आउट. ओके, चलो वेन्स. अब अच्छे वेन्स क्या है? व्हाट आर वेन्स? अब अच्छे व्हेन यू टॉक अबाउट वेन्स, veins are, you can say, blood vessels which carry the body, sorry, from body parts towards the heart. आर्टरीज जैसे बच्चे ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाते हैं, वैसे वेन्स क्या करते हैं? वेन्स सारा ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की साइड लेके आते हैं. सो व्हाट वेन्स डू? दे कैरी ब्लड, they carry blood from all body parts towards the heart. Okay, what will veins do? They will carry blood from all body parts towards the heart. अब अच्छा, when you talk about veins, जब आप veins की बात करते हो, ठीक है, when you talk about veins, बच्चे veins के अंदर जो blood है वो कैसे होता है? veins के अंदर जो blood है deoxygenated blood होता है. they carry deoxygenated blood. अब बच्चे why we are saying they carry deoxygenated blood? क्योंकि बच्चे ये ब्लड को कलेक्ट करके बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, एक्सेप्ट, पर बच्चे इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे आर्टरीज में थी, एक्सेप्ट पल्मनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मनरी वेन. बच्चे अगर सिर्फ आप पल्मनरी वेन को छोड़ दो, बाकी सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सो एक्सेप्ट पल्मनरी वेन विच कैरीज, एक्सेप्ट पल्मनरी वेन विच कैरीज oxygenated blood. बच्चे ये पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लेके आएगी? जब भी बच्चे ये टर्म आता है पल्मनरी, pulmonary is related to lungs, so this pulmonary vein is carrying oxygenated blood from lungs towards the heart. ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी जो वॉल्स हैं बच्चे आर्टरीज के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत थिन है. दे हैव थिन वॉल्स, दे हैव थिन वॉल्स एंड also show presence of valves. ठीक है बच्चे, इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है बहुत कम होता है. सो दे आर थिन वॉल्स, दे हैव थिन वॉल्स एंड दे आल्सो शो प्रेजेंस ऑफ वैल्व्स. क्योंकि बच्चे ब्लड प्रेशर कम है तो वैल्व्स क्या करेंगे? एक ही डायरेक्शन में ब्लड को पुश करने में हेल्प करेंगे. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. अब बच्चे जो थर्ड कैटेगरी आएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, दैट इज कैपिलरीज. द थर्ड कैटेगरी दैट विल कम अंडर ब्लड वेसल्स is capillaries. All right, capillaries. Okay, अब बच्चे when you talk about capillaries, capillaries are very thin walled. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? They are present at the junction of arteries and veins. हाँ जी सिमरन. सर
Sir, why does the pulmonary artery carries the oxygenated blood from the lungs to the heart? why pulmonary vein? नहीं सर, आई मीन मतलब जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन कैरी करके लंग से हार्ट पे लेके जाती है, फिर वो फर्दर आर्टरीज कैरी करती हैं सारी बॉडी पार्ट्स को. देखो बच्चे, वंस पल्मोनरी वेन विल शिफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, उसके बाद हार्ट नहीं पंप ब्लड करना है ना आगे, तो उसके बाद जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा वो आर्टरी से ही जाएगा. पल्मोनरी वेन का क्या काम है? पल्मोनरी वेन विल सिंपली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. और सर इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से है? वो हार्ट से फिर सारी बॉडी के पास जाएगा. ये हम डबल सर्कुलेशन में भी डिस्कस करेंगे. डबल सर्कुलेशन करते हैं अभी, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. ठीक है, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट. तो बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या करते हैं? दे आर प्रेजेंट एट जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. दे आर प्रेजेंट एट, कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट जंक्शन. They are present at junction between arteries and veins. ओके, ये बच्चे आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो जंक्शन है ना, वहां प्रेजेंट होते हैं. अब बच्चे, दे आर वेरी थिन वॉल्ड, दे आर वेरी थिन वॉल्ड, बहुत थिन वॉल्ड होते हैं. कितने थिन? जनरली सिंगल सेल थिकनेस है, सिंगल सेल थिकनेस होती है. ओके, एंड हेल्प्स इन exchange of materials between blood and tissues. बच्चे, जो इनकी वॉल है, वॉल इज वेरी थिन, एंड दिस थिन वॉल हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. ब्लड और टिश्यूज के बीच में मटेरियल्स को कौन एक्सचेंज करने में हेल्प करता है? कैपिलरीज. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कैपिलरीज. कैपिलरीज की जो वॉल है बहुत थिन होती है, ताकि ब्लड जो है वो अपना मटेरियल एक्सचेंज कर सके टिश्यूज के साथ. ओके, तो बच्चे, ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ गई ये बात? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, चलो. अब बच्चे, वी विल बी क्विकली मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. And then we'll be discussing the circulation of blood within the heart and to the body parts. So bache, when you talk about human heart, what is the role of human heart? Bache, human heart is the pumping organ. Human heart is the pumping organ. Human heart is pumping organ. Human heart is the pumping organ which transports blood. Human heart is pumping organ which helps to transport blood. ओके, अब अच्छा, व्हाट इज स्पेशल अबाउट आवर ह्यूमन हार्ट? हमारे ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ स्पेशल चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स. इसके अंदर बच्चे 4 चेंबर्स हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स. चेंबर्स का क्या मतलब है बच्चे? 4 अलग अलग पोर्शंस हैं, कमरे की तरह, like 4 rooms. Upper auricles,
कि ये चेंबर्स हम कैसे देख रहे हैं, 4 चेंबर्स, और 2 अपर ऑरिकल्स, 2 अपर ऑरिकल्स और एट्रिया, आप इन्हें एट्रिया भी बोल सकते हो, 2 अपर ऑरिकल्स और एट्रिया एंड 2 लोअर चेंबर्स called ventricles. ओके, तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है बच्चे वो 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है, 2 अपर ऑरिकल्स और एट्रिया एंड 2 लोअर चेंबर्स विच आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ओके, अब बच्चे यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की वजह से क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज चेंबर्स, oxygenated blood does not mix with deoxygenated blood in our heart. Okay, और अगर आप अपना ह्यूमन हार्ट देखोगे हमेशा राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द हार्ट, ओके, राइट साइड ऑफ द हार्ट always carries deoxygenated blood. अगर आप बच्चे हार्ट का राइट साइड देखोगे तो उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरास अगर आप लेफ्ट साइड देखो, वेरास लेफ्ट साइड, whereas left side of the heart carries oxygenated blood. ओके, अगर आप बच्चे लेफ्ट साइड देखोगे हार्ट के तो क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. So what we need to remember is हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स हैं, 2 अपर ऑरिकल्स और एट्रिया and 2 lower ventricles. Due to these chambers, right side of the heart always has deoxygenated blood, whereas left side will have oxygenated blood. Okay, I'll just share the image जो अब पहले मेरे साथ शेयर की थी. Okay, तो बच्चे this is showing the structure of human heart. If you carefully see, ये जो बच्चे हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन है, this portion, this and this portion, okay, ये जो 2 पोर्शन हैं इनको हम कहते हैं ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है, ये हमारे 2 पोर्शंस हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. ओके, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, ये हमारे 2 पोर्शंस हैं, अपर वाले ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स. और राइट साइड में हमेशा बच्चे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड होगा, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड. ओके, ये चीज याद रखनी है. और अगर आप ध्यान से देखोगे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में वैल्व्स हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में वैल्व्स हैं. इफ यू सी बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, बच्चे ऊपर वाला चेंबर राइट ऑरिकल, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वैल्व है. ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. तो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वैल्व है. एंड इफ यू टॉक अबाउट लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इट विल हैव मिट्रल वैल्व. मिट्रल वैल्व क्या करता है, मिट्रल वैल्व रेगुलेट्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू राइट, सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो पोर्शन है उनके अंदर ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है, थ्रू मिट्रल वैल्व. ओके, तो बच्चे वैल्व्स आर एक्चुअली हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड
in one direction. All right, बच्चे I'll be going back to your NCERT book. ठीक है, NCERT की बुक की साइड जाऊंगा मैं दोबारा, वहां ये आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. अपर चेम्बर्स देखो यहां दिया हुआ है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम. बच्चे यू कैन ऑल्सो कॉल देम ऑरिकल्स. ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ऑरिकल्स हैं. ओके, उसके बाद लोअर चेम्बर्स देखिए, लोअर चेम्बर्स देखिए, ये वाले चेम्बर्स, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल. तो अपर चेम्बर्स आर ऑरिकल्स और एट्रियम, लोअर चेम्बर्स आर वेंट्रिकल्स. ठीक है, ऑलराइट, ये देखो दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अब अच्छा यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट कैन यू सी इन थिकनेस. अगर आप ऑरिकल्स की वॉल देखोगे वो ज्यादा थिक नहीं है, पर बच्चे अगर आप वेंट्रिकल्स की वॉल देखोगे, ये देखो, ये पोर्शन देखो, वेंट्रिकल्स की वॉल देखो, आर दे थिन और आर दे थिक. ध्यान से देखिए, ये पोर्शन देखो, ये वाला, दे हैव वेरी थिक वॉल्स. वेंट्रिकल्स की जो वॉल है बच्चे बहुत थिक है. और इसके पीछे क्या रीजन है बच्चे, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, वेंट्रिकल्स को क्या करना होता है, ब्लड को हर तरफ पंप करना है. ऑलराइट, दिस इज द रीजन वेंट्रिकल्स हैव वेरी थिक वॉल्स. ठीक है, लोअर चेम्बर्स, लोअर चेम्बर्स और वेंट्रिकल्स, और ventricles in heart have very thick muscular walls. ठीक है बच्चे, इनके नीचे जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक हैं वेंट्रिकल्स की, एज दे हैव टू पुश ब्लड. आप लिख सकते हो एज दे हैव टू पंप ब्लड टू बॉडी पार्ट्स. ओके, लोअर चेम्बर्स जो होते हैं बच्चे वेंट्रिकल्स हार्ट के अंदर, उनके अंदर बहुत थिक वॉल्स हैं, क्योंकि बच्चे वेंट्रिकल्स को क्या करना है, ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में पंप करना है. ऑरिकल्स का क्या काम होता है, दे विल सिंपली रिसीव ब्लड. ऑरिकल ब्लड को रिसीव करते हैं, तो इसलिए उनकी वॉल ज्यादा थिक नहीं है. पर बच्चे अगर आप वेंट्रिकल्स को देखो तो वेंट्रिकल्स की वॉल बहुत ज्यादा थिक है, क्योंकि उनको ब्लड को क्या करना है, दे हैव टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑलराइट, I'll just go back to the NCERT book once again. और इसके अंदर देखो बच्चे, आप में को राइट साइड में आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया है. देखो ये वाली साइड, इसके अंदर ब्लू कलर है. बच्चे ब्लू कलर जो होता है ब्लड का, वो क्या डिनोट करता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपीयर्स ब्लूइश, तो ये डीऑक्सीजनेटेड है. ओके, आपने कई बार देखा होगा बच्चे, अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनके लिप्स जो है वो ब्लू होने लग जाते हैं, फेस पे ब्लूइश टिंज आ जाता है. इफ समबडी इज ड्राउनिंग आल्सो, ड्राउन्स, तो उसका फेस भी ब्लूइश हो जाता है. रीजन क्या है बच्चे, ऑक्सीजन की कमी. तो ब्लड जो है ब्लूइश हो जाएगा अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया. तो बच्चे राइट साइड ऑफ द हार्ट इट इज शोन इन ब्लू कलर. व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, इट इज इंडिकेटिंग दैट राइट साइड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड. अब बच्चे लेफ्ट साइड देखो, ये वाला पोर्शन, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल पोर्शन देखो, इसके अंदर देखो आपको कलर कैसे दिखाया जाएगा. इसके अंदर आपको रेडिश कलर है, ये वाला पोर्शन, दिस वन. तो बच्चे इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ऑलराइट, लेफ्ट साइड के अंदर कैसे दिखता है आपको कलर, लेफ्ट साइड यू विल सी इट एज ब्लूइश. लेफ्ट साइड में आपको ब्लूइश दिखेगा. ऑलराइट, ये चीज याद रखनी है. इज दिस क्लियर, यहां तक सबको समझ आ गया, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है.
बच्चे अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो फिर हम आगे जा सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखने के लिए। ऑल राइट, चलो अब बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ब्लड फ्लो अकर्स इन हार्ट। तो बच्चे इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक सिंपल सा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा और उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा हाउ ब्लड फ्लोज इन ह्यूमन हार्ट। ओके, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, I'll be just making a box like structure ऐसे। What is this box like structure indicating? बच्चे this is indicating our human heart, और इसको बच्चे मैं 4 चेम्बर्स में डिवाइड करूंगा ऐसे। बच्चे याद रखना है ह्यूमन हार्ट ऐसा नहीं दिखता, इट इज जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि हाउ ब्लड फ्लो इज अकरिंग। Yes, Madhav, in reality deoxygenated blood is greenish in color or bluish in color, ये सही में ऐसे ही दिखता है। ऑलराइट, तो बच्चे इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट, बच्चे these two upper chambers, let's label it as RA, this is right auricle, this one is left auricle। राइट ऑरिकल के नीचे बचे राइट वेंट्रिकल लोअर पोर्शन, लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चे ये आपके हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं। बच्चे दीज 4 चेम्बर्स प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड विद ईच अदर, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आपस में मिक्स नहीं होने देते। अब बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ह्यूमन हार्ट। अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने क्या सीखा था, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बच्चे ऑल दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, इट विल कम फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ओके, इनसाइड इनटू द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के अंदर बच्चे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और यहां बच्चे कौन सी वेन है, यहां बचे सबसे बड़ी वेन है वेना कावा। वेना कावा बचे, वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट वेन। और इसका क्या रोल है, इट ब्रिंग्स इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने बच्चे इसलिए ब्लू एरो दिखाया है। ओके, जस्ट लेट मी यूज दिस, आई विल यूज दिस कलर। ओके ओके, वेना कावा इट विल ब्रिंग, सॉरी, वेना कावा क्या करेगा बच्चे, वेना कावा विल ब्रिंग इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू दी राइट ऑरिकल। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे ह्यूमन बॉडी का कहां आता है, वेना कावा से राइट ऑरिकल में। ओके, ये चीज याद रखनी है। अब बच्चे वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर लेके आएगा राइट ऑरिकल में। हियर वी हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बच्चे दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव फॉरवर्ड थ्रू वैल्व्स, यहां वैल्व्स प्रेजेंट हैं। इन वैल्व्स के थ्रू कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब बच्चे फ्रॉम राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगा थ्रू अ आर्टरी, और यहां कौन सी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से बच्चे ब्लड बाहर कौन लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, पल्मनरी आर्टरी। ओके, pulmonary artery, it will carry deoxygenated blood to heart। तो बच्चे राइट साइड में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेना कावा, वेना कावा इज ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स इनटू द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, थ्रू वैल्व। यहाँ ट्राइकस्पिड वैल्व है जो ब्लड को आगे लेके जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से बचे पल्मनरी आर्टरी निकलेगी। दिस आर्टरी विल टेक ब्लड टू हार्ट, सॉरी नॉट हार्ट, टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। राइट ऑरिकल से पल्मनरी आर्टरी निकलेगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के, सॉरी, लंग्स के पास लेके जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए। तो बच्चे दिस आर्टरी इज गोइंग टूवर्ड्स लंग्स, लंग्स की साइड जा रही है, इसलिए इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑलराइट, ये चीज याद रखनी है। अब बच्चे वंस दिस ब्लड रीचेस द लंग्स थ्रू पल्मनरी आर्टरी इट विल ऑक्सीजनेट। ओके, अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेफ्ट ऑरिकल में लंग से
पल्मनरी वेन आएगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर लेके जाएगी। बच्चे मैं रेड कलर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। यहाँ कौन सी वेन है? पल्मनरी वेन। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ पल्मनरी वेन? दिस विल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ओके, फ्रॉम लंग्स। बच्चे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। ऑलराइट, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर थ्रू पल्मनरी वेन। अब बच्चे ये जो ब्लड है थ्रू वैल्व्स नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड बच्चे यहां बहुत बड़ी एक आर्टरी है विच इज एओर्टा। आई थिंक दिस क्वेश्चन केशव और माधव वाज आस्किंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो बच्चे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा ऑक्सीजनेटेड, एंड दैट इज थ्रू एओर्टा। बच्चे एओर्टा इज द लार्जेस्ट, एओर्टा आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। और इसका क्या रोल होता है? ये बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओके माधव, आई थिंक योर डाउट इज क्लियर नाउ। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, इसका फंक्शन क्या है? इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल to all the body parts. Madhav, is this clear? What is aorta doing? Aorta is carrying oxygenated blood from left ventricle to all the body parts. ठीक है, तो बच्चे this is how circulation of blood occurs in human heart. Alright, I'll just show you the diagram ताकि आपको बात समझ आए मैंने कैसे बनाया है। बच्चे ह्यूमन हार्ट में सारा ब्लड ऊपर से ही आता है और ऊपर से ही आता है और ऊपर से ही वापस जाता है। मैंने तो आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया था ताकि आपको ये समझ आ जाए। बच्चे ह्यूमन हार्ट ऐसा नहीं दिखता, पर इससे हमें ये समझ आता है कि कौन से चेंबर में कहां से ब्लड आ रहा है या कहां से ब्लड बाहर जा रहा है। ऑलराइट, अब मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में जरा समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चे इफ यू सी केयरफुली, यहां से ब्लड अंदर आ रहा है, एरोस देखिए, यहां लेबल किया हुआ है वेना कावा। तो बच्चे वेना कावा इज ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। और बच्चे ये ब्लड कहाँ आ रहा है? ध्यान से देखिए एरोस से, ये सारा ब्लड इधर आ रहा है राइट ऑरिकल में। अब बच्चे राइट ऑरिकल से ब्लड नीचे जा रहा है इनटू राइट वेंट्रिकल, और यहां से जब पंपिंग होगी ब्लड एग्जिट करेगा लंग्स की साइड जाने के लिए। ये देखो पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ओके, उसके बाद बचे जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हो जाएगी ब्लड की, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो पल्मनरी वेन ने ब्लड को वापस लेके आना है लंग्स में। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो एरोस, यहां से ब्लड वापस आया पल्मनरी वेन से फ्रॉम लंग्स। अब ये बचे ब्लड नीचे आएगा, अगेन देयर इज अ वाल्व प्रेजेंट हियर, इसको कहते हैं मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। यहां से ब्लड सर्कुलेट होगा और ब्लड पंप होके बॉडी से बाहर कैसे जाएगा? एओर्टा से। ये देखो, तो बच्चे अगर आप ध्यान से सोचो, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में ब्लड की सर्कुलेशन एक साथ चलती है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर ह्यूमन हार्ट। इट इज प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ ब्लड, जिससे हमारी ऑक्सीजन डिमांड मीट होती है एंड वी आर एबल टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी। इज दिस क्लियर? सर्कुलेशन, सी माधव, फॉर योर एनटीएससी और ओलंपियाड्स आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 3 कस्प हैं, डोर लाइक स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली देयर आर बाइकस्पिड वाल्व्स, बाइकस्पिड वाल्व शो प्रेजेंस ऑफ 2 वाल्व लाइक स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी।
अब बच्चे लेट्स ट्राई टू डिफाइन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। बच्चे हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर जैसे हमें दिख रहा है, राइट साइड में भी सर्कुलेशन है, लेफ्ट साइड में भी सर्कुलेशन है। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर बच्चे डबल सर्कुलेशन होती है। अब बच्चे हाउ डू वी डिफाइन डबल सर्कुलेशन? सी आकृति, वेन्स के अंदर बहुत सारे वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। आप उन्हें सिंपली कहोगे दे आर वेन्स, सॉरी दे आर वैल्व्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वेन्स। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब देखते हैं बच्चे ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है। तो बच्चे ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है बच्चे, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। So just let me change the color. This mechanism is known as double circulation. But how do we define double circulation? It is flow of blood. It is flow of blood twice through the heart it is flow of blood twice through the heart before circulating to all the body parts. ओके बच्चे, डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या हो रहा है? जो ब्लड है वो दो बार फ्लो करता है हार्ट के अंदर। पहले राइट साइड में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद वो लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर वापस लेफ्ट साइड में आएगा, फिर बॉडी के पास जाता है। तो बच्चे ब्लड कितनी बार चक्कर मारता है हार्ट में? एक साथ दो बार। दिस इज द रीजन इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इज दिस डेफिनेशन क्लियर? ओके, राइट साइड से अगर आप सर्कुलेशन देखोगे बच्चे, राइट साइड की जो सर्कुलेशन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है? लंग्स के पास पहुंचाता है। तो बच्चे राइट साइड की जो सर्कुलेशन है दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो राइट साइड से बच्चे लंग्स की तरफ सर्कुलेशन होती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम it is circulation of blood from right ventricle to lungs, and then oxygenated blood is brought back to heart via pulmonary vein. Is this clear? सबको समझ आ गई ये बात? ओके, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? इट इज सर्कुलेशन ऑफ, हाउ डू वी डिफाइन पल्मोनरी सर्कुलेशन? ये डबल सर्कुलेशन का पहली कैटेगरी है, सर्कुलेशन की पहली टाइप। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट deoxygenated blood to lungs. Okay, it helps to transport deoxygenated blood to lungs. उसके बाद है बच्चे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है बच्चे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाना है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से होगा? लेफ्ट साइड से। सिस्टमिक सर्कुलेशन इन हार्ट इट विल अकर ऑन द लेफ्ट साइड। और इसका क्या रोल है? इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट oxygenated blood and where is this oxygenated blood sent? It is sent to all the body parts.
ओके बच्चे, ये दोनों सर्कुलेशन क्लियर है? राइट साइड लेफ्ट साइड बच्चे दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग के पास और लंग से हार्ट में वापस। सिस्टमिक में बच्चे बॉडी पार्ट से राइट साइड, फिर राइट साइड से बच्चे वो किधर जाता है ब्लड, ये आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चे क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। once the oxygen is used up, then the blood has to reach back to lungs। तो उसके लिए पहले deoxygenated blood किधर आएगा, राइट लंग पे, फिर राइट लंग से किधर जाएगा, it will move to moon, sorry बच्चे राइट, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया। फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट द deoxygenated blood it will move to lungs, and from lungs we will have pulmonary vein, and this will bring blood back to the left side of the heart। तो बच्चे ये जो सर्कुलेशन है इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड बैक अगेन टू हार्ट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब बच्चे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द नीड फॉर डबल सर्कुलेशन। नीड बच्चे, व्हाई डू यू थिंक डबल सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड इन हायर ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली मैमल्स एंड एव्स, बर्ड्स। बच्चे व्हाई डू वी नीड डबल सर्कुलेशन, हमें डबल सर्कुलेशन की क्या जरूरत है। बच्चे इफ वी टॉक अबाउट डबल सर्कुलेशन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारा प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता, जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है बच्चे, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एंड व्हेन दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो ज्यादा है वो इजिली पूरी होती है। ठीक है, सो डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज क्या है। नंबर 1, supplies optimum amount of oxygen, it supplies optimum amount of oxygen to meet energy demands। ठीक है, डबल सर्कुलेशन का जो सबसे बड़ी बच्चा बेनिफिट है कि इसमें सही अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, जो उसकी एनर्जी डिमांड है जो बहुत हाई है उसको इजीली मीट कर सके। अगर आप बच्चे लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखोगे, जैसे फिशेस हैं, फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होती है बच्चे। फिशेस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। तो उनका जो बच्चे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट नहीं, अपर वेंट्रिकल में आता है, अपर चेम्बर। ओनली अ सिंगल वेंट्रिकल इज देयर, सॉरी नॉट वेंट्रिकल, सिंगल ऑरिकल इज देयर। फ्रॉम दी सिंगल ऑरिकल दी ब्लड विल पास इनटू सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। फिर वेंट्रिकल से बच्चे ब्लड किधर जाएगा, गिल्स की साइड। गिल्स में ब्लड फिल्टर होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, उसके बाद वो बॉडी टिश्यूज के पास जाएगा ब्लड, बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन यूज करेंगे, CO2 को वापस छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो ब्लड में आएगा, एंड देन फ्रॉम ब्लड इट विल बी अगेन पंप्ड बैक टू गिल्स। तो बच्चे सिंगल सर्कुलेशन में ह्यूमन हार्ट से ब्लड, सॉरी नॉट ह्यूमन हार्ट, फ्रॉम द हार्ट ऑफ फिश it goes to lungs for oxygenation, then to all body parts, and then deoxygenated air is again returned, deoxygenated blood is again returned, so that this process can be repeated again। Is this clear? All right, chalo बच्चे, we will now quickly discuss blood pressure। ब्लड प्रेशर हम डिस्कस करेंगे जल्दी से। ऑलराइट बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर क्या है,
बच्चे ब्लड प्रेशर इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ अ वेसल। बच्चे जब भी ब्लड किसी वेसल के अंदर फ्लो करता है तो ब्लड क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी वॉल पे। दिस इज नोन एज बीपी और ब्लड प्रेशर। अब बच्चे इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ओके, I'll just quickly tell you what is systole. Systole is contraction of heart. अगर बच्चे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टोल। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल। ओके, डायस्टोल हार्ट रिलैक्सेशन। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल। तो बच्चे ऑब्वियसली व्हेन द हार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट तब ब्लड प्रेशर सबसे हाई होगा, और जब हार्ट रिलैक्स करता है डायस्टोल में तब ब्लड प्रेशर लो होगा। तो बच्चे ये जो वैल्यू है इट इज 120, इसको हम कैसे लिखते हैं, 120/80 mm ऑफ Hg। तो बच्चे ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या डिनोट कर रही है, इट इज डिनोटिंग सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाली वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, डायस्टोलिक प्रेशर। अपर वैल्यू इज डिनोटिंग व्हेन हार्ट इज रिलैक्सिंग, सॉरी नॉट रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग 120, एंड 80 क्या डिनोट कर रहा है, डायस्टोल, डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स करता है। तो बच्चे ये हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पर कई बार बच्चे हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज डेंजरस। अगर ब्लड प्रेशर बच्चे ज्यादा ही बढ़ जाए तो उससे हमारी जो इंटरनल बच्चे कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वो फट सकती हैं। सो हाइपरटेंशन इज हाई बीपी। और ये क्यों होता है, इट इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू हाई सॉल्टी डाइट। अगर डाइट में बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा तो बच्चे उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और बच्चे इसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ये नाम को आना चाहिए बच्चे। इसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इफ द ब्लड वेसल में प्रेशर ज्यादा है इट कैन लीड टू रप्चर, इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इससे आपकी आर्टरी जो है वो फट सकती है, एंड इट विल लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर ये लिखा हुआ है बच्चे आपकी एनसीईआरटी की बुक में, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। So it helps to measure the blood pressure. Clear everybody? All right. Okay. All right. So बच्चे I think we have already reached 8 o'clock. All right. तो हमने बच्चे blood vessels discuss कर लिया है. Okay. बच्चे let's quickly talk about blood and lymph. बच्चे when you talk about blood के अंदर बच्चे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ब्लड के अंदर बच्चे प्रेजेंट होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। बच्चे आरबीसी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है उसका क्या नाम है, दैट इज हीमोग्लोबिन। आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन which helps to transport oxygen and CO2. So this is the role of RBC in blood. Then बच्चे we have WBC or leukocytes, white blood cells. They help to provide us with immunity. They are soldiers of the body. ये immunity provide करते हैं. They help to fight against diseases. इसके अलावा बच्चे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी होते हैं। What is the role of platelets? प्लेटलेट क्या रोल प्ले करते हैं बच्चे, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स किस चीज में हेल्प करते हैं, ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बच्चे यू माइट हैव नोटिस जब आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, तो बच्चे ये आपके ब्लड के अंदर 3 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो मिलते हैं। बच्चे what are the general functions of the blood? It helps to transport oxygen and CO2.
ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। आई होप ब्लड के अंदर तो आपको कोई ज्यादा डाउट नहीं होंगे। These are some of the functions that you have learned in class 9th also. RBC और red blood cells, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, which is acting as a respiratory pigment for transporting oxygen and CO2. Then we have WBCs. Which is helping to provide immunity. And then we have platelets, which is helping in clotting of blood. बच्चे जब बहुत ज्यादा चोट लगेगी, डीप कट होगा, तब आपके प्लेटलेट्स ज्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली कट बहुत ज्यादा डीप हो गया है, फिर तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। बच्चे इनर ब्लीडिंग में तो आपकी आर्टरीज ही फट गई, उनको कैसे क्लॉट करेंगे? अनीशा, इंटरनल हेमरेज और ब्लीडिंग में तो आर्टरी फट गई ना। जब छोटा मोटा कट लगता है तो बच्चे वो तो क्लॉटिंग हो सकती है, अगर डीप कट हो गया तो वो नहीं क्लॉटिंग होगी जल्दी, उसके लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं, लास्ट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज लिम्फ। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट लिम्फ, लिम्फ इज द टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ क्या है? लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड, इसका क्या रोल होता है? व्हाट इज इट्स रोल? बच्चे लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। टिश्यूज और ब्लड के बीच में मटेरियल्स को कौन एक्सचेंज करता है? लिम्फ। बच्चे दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द मिडल मैन। इट इज ऑल्सो नोन एज द मिडल मैन। इट हेल्प्स टू एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब बच्चे हाउ इज लिम्फ फॉर्म? लिम्फ कैसे फॉर्म होता है? बच्चे व्हेन ब्लड रीचेस द कैपिलरीज, जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर पहुंचता है तो क्या होता है? ब्लड फिल्टर्स आउट। ब्लड विल फिल्टर आउट फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू सराउंडिंग टिश्यू स्पेसेस। अब बच्चे जब ब्लड फिल्टर होके बाहर आता है तो आरबीसी बाहर नहीं आ पाते, आरबीसी का साइज बड़ा होता है, दे कैन नॉट फिल्टर आउट फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस। ओके, बट nutrients along with lymph, they are filtered out, and these nutrients or gases are in close contact with tissues, तो वो टिश्यू में सप्लाई हो जाते हैं। टिश्यू का जो ऑक्सीजन और वेस्ट है बच्चे लिम्फ के अंदर आ जाता है। ये लिम्फ क्या करेगा बच्चे? फिर सर्कुलेट होके वापस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। दिस इज हाउ ब्लड हेल्प्स टू एक्सचेंज इट्स मटेरियल्स बिटवीन टिश्यू थ्रू दी लिम्फ। लिम्फ के थ्रू ब्लड क्या करता है? अपना मटेरियल एक्सचेंज करता है टिश्यूज के साथ। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई? आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जब ब्लड फिल्टर होके कैपिलरीज से बाहर आएगा टिश्यू स्पेसेस में, तो वो क्या बनाएगा? वो टिश्यू फ्लूइड बनाएगा। एंड दिस टिश्यू फ्लूइड will contain all the nutrients and respiratory gases which are supplied to the tissues. टिश्यू अपना सारा वेस्ट लिम्फ के अंदर डालेंगे, लिम्फ वापस सर्कुलेट होकर ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। दिस इज हाउ एक्सचेंज अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। हाँ जी हिमांशी। तो लिम्फ कैसे फॉर्म होते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। ओके बच्चे देखो, लिम्फ जब लिम्फ जब कैपिलरीज में पहुंचेगा, बच्चे देखो इसकी फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी के बुक में भी एक्सप्लेन की गई है। when blood reaches the capillaries through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, बच्चे ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells, they escape into intercellular spaces in the tissues to form tissue fluid or lymph. बच्चे आपको याद ये रखना है कि जब ब्लड कैपिलरीज में पहुंचता है तो वहां ब्लड की फिल्टरिंग होती है, तो ब्लड का कुछ जो फ्लूइड पोर्शन है प्लाज्मा along with cells and other nutrients,
ये फिल्टर होके बाहर टिश्यू स्पेसेस में आ जाते हैं, और ये जो फ्लूइड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ओके, एंड लिम्फ जो होगा बच्चे क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, लिम्फ इज कलरलेस। रीजन, इसके अंदर आरबीसी नहीं होती, आरबीसी कैन नॉट फिल्टर आउट। ओके, दिस इज द रीजन इट इज कलरलेस। अब बच्चे लिम्फ का क्या रोल होता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन and it drains excess fluid from extracellular space back into the blood। तो बच्चे न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज है या रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज है वो लिम्फ के थ्रू होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। इज दिस क्लियर? अब समझ आ गया सबको? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल राइट। तो बच्चे here we finish up the circulatory system in human beings. Okay, बच्चे next class, next session we'll be picking up transportation in plants. next session में बच्चे हम transportation in plants को pick करेंगे। आज का सेशन बच्चे हम यहीं खत्म कर रहे हैं, we are going to end it here. Please revise it through. ठीक है बच्चे, इसको एक बार रिवाइज करते रहिए साथ में। बच्चे I think most probably by Friday we will be able to finish up live processes. तो बच्चे जब लाइव प्रोसेसेस खत्म होगा तो मैं आपके साथ एक टेस्ट शेयर करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस का, 100 MCQs, दैट विल बी बेस्ड ऑन लाइव प्रोसेसेस फुल। तो बच्चे ये पूरा पोर्शन साथ साथ रिवाइज करते जाइए। ओके, यू कैन से जो वो मैं MCQ आपके साथ शेयर करूंगा दैट विल बी रिलेटेड टू योर टर्म 1 पोर्शन। तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लोगे। तो अभी साथ साथ रिवाइज करते जाइए। ऑल राइट, चलो। सो बच्चे आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर, वी विल कंटिन्यू विद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स in the next class.